Welcome kids. Welcome to the English learning channel. Kids, our today's topic is preposition. Today you will learn some more prepositions. Now learn the preposition by and with. The use of by and with. See the first use of by. The preposition by works as an agent. It means when work is done by any person, we will use by. जब कोई काम किसी person के द्वारा किया जाता है, we will use by preposition. Second, the preposition with works as an instrument. It means when work is done with the help of any instrument or anything, so we use with preposition. Now see the example. The vegetables were cut by my mother with a sharp knife. It means when work was done by the person, so we have used by. So work was done by my mother. किसने वर्क किया है? मदर ने. एंड विद अ शार्प नाइफ. और किस चीज़ से किया है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया? नाइफ. तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने क्या यूज़ किया है? विद preposition. ठीक है. तो वेजिटेबल्स वर कट बाय माय मदर विद अ शार्प नाइफ. कीप दिस थिंग इन माइंड. जब पर्सन कोई वर्क करता है तो बाय यूज़ करेंगे. जब किसी चीज़ से किया जाता है तो हम विद यूज़ करेंगे. वन मोर एग्जाम्पल. The apple was cut by my mother and the wood was cut by the woodcutter. Now see the next use of by. By means के द्वारा या फिर द्वारा. He came by bus. वो बस से आया. बस द्वारा आया. For transport we always use by. See one more example. We go to school by bus. We traveled by air. He came by train. So with transport we use by preposition. Now see next use of with. With means साथ, के साथ. In last example we have learned the use of with an instrument. Now here with means साथ. I play with my friends. मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ. तो साथ के लिए क्या यूज़ करेंगे हम? With preposition. Now next preposition is between and among. So what is the difference between and among? We use between. It denotes a position between two things. जब भी हमें किन्हीं टू थिंग्स के बीच में, टू ऑब्जेक्ट के बीच में या टू पर्सन के बीच में किसी की पोजीशन बतानी होती है, वी विल यूज बिटवीन देम. सी द एग्जाम्पल. रवि वॉज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड शीला. नाउ इन दिस एग्जाम्पल वेयर इज द पोजीशन ऑफ रवि? सी, मोहन इज राइट साइड ऑफ द रवि and Sheila is left side of the Ravi. So where is the position of Ravi? Between. So Ravi is between Mohan and Sheila. Means जब भी two things के बीच में कुछ यूज़ करना होता है तो we use between. तो two things के लिए, two objects के लिए, two person के लिए we will use between preposition. See number 3. Between का प्रयोग समय, स्थान, तापमान या मानचित्र के दो बिंदुओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. इट मीन्स टू एक्सप्रेस और कनेक्ट टू पॉइंट्स ऑफ टाइम्स, प्लेसेस और इंसिडेंट्स एंड टू शो इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ स्केल और मैप. इट मीन्स कोई भी टू टाइम्स गिवन हो, कोई भी टू प्लेसेस गिवन हो या कुछ भी स्केल पे आपको मैप शो करना है, कोई भी टू पॉइंट्स हो, उन टू पॉइंट्स के बीच में हम बिटवीन वर्ड यूज करते हैं. वी यूज द बिटवीन preposition. सी एग्जाम्पल. ही मे कम बिटवीन 8 AM एंड 9 AM. इट मीन्स वो 8 AM और 9
AM के बीच में आ सकता है, बीच में, we have used between preposition. Second, the road between Mandla and Jabalpur is under construction. Here we have used the name of two places. उसके लिए हमने क्या preposition यूज की है? Between. थर्ड देखिए, टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स बिटवीन 30 डिग्री टू 45 डिग्री. इट मीन्स टेम्परेचर 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में फ्लक्चुएट होता रहता है. तो 2 पॉइंट्स के लिए 2 पॉइंट्स ऑन अ स्केल वी हैव यूज्ड बिटवीन प्रपोजिशन. बिटवीन 2 थिंग्स के बीच में यूज की जाती है, चाहे वो टाइम हो, प्लेसेस हो, टेम्परेचर हो, पर्सन हो, वी यूज बिटवीन प्रपोजिशन. नाउ नेक्स्ट, यूज ऑफ अमंग. अमंग का प्रयोग 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए किया जाता है. अमंग इज यूज व्हेन वी स्पीक अबाउट मोर देन 2 थिंग्स. इट मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन 2 थिंग्स we will use among preposition. See example, distribute these chocolates among the students. अब यहाँ पे students क्या है? more than 2 है, 2 से ज़्यादा है तो we will use among preposition. और for 2 we will use between preposition. So distribute these chocolates among the students. Number 2, among का use किया जाता है जब सराउंडेड बाय समबडी और समथिंग, इन द मिडल ऑफ समथिंग और समबडी. जब कोई चीज किसी से सराउंडेड होती है, किसी चीज से या किसी पर्सन से, या फिर इन द मिडल ऑफ समथिंग और समबडी, या किसी चीज के बीच में होती है, देन वी यूज अमंग प्रपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस इज अमंग मैंगो ट्रीज. नाउ वेयर इज द पोजिशन ऑफ हाउस? सी इन द पिक्चर. The house is surrounded by the mango trees. It means my house is among mango trees. Mango trees के बीच में है. There are so many mango trees. Number 2, when he is among his friends, he feels happy. जब वो अपने फ्रेंड्स के बीच में होता है, he feels happy, वो happy feel करता है. तो यहाँ फ्रेंड्स पर्सन के बीच में है और वहाँ मैंगो ट्रीज के बीच में है, थिंग्स की. ओके, तो वी हैव यूज अमंग प्रपोजिशन. मोर देन 2 वी विल यूज अमंग, और फॉर 2 वी विल यूज बिटवीन प्रपोजिशन. नाउ सी द एग्जाम्पल, देयर हैड बीन अ हीटेड आर्गुमेंट अमंग द कमेटी मेंबर्स. देयर आर सो मेनी मेंबर्स, तो वी हैव यूज अमंग प्रपोजिशन. Next example, I think there is not much difference dash the 2 dresses. So here which preposition we will use? Between, because 2 dresses are given. There is a difference between the 2 dresses. So we will use between preposition here. Now next difference is between since and for. Now we will learn about since and for. What is the meaning of since and for in the preposition? The meaning of since and for is say, point of time. It means since is used for a fixed time. Now learn the use of since and for. Since means होता है say. Preposition में we use since and for the time period. But in conjunction, since and for is used for reason. Conjunctions mean since और for reason के लिए use होते हैं. But in preposition, since and for is used for time period. Now learn the first rule of since. Number 1, since. Since we use for fixed time. अगर आपको फिक्स टाइम गिवन है 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, इट कैन बी 5 PM, 9 PM, 9 o'clock, मीन्स टाइम आपको फिक्स दिया हुआ है. 5 o'clock गिवन है, 7 o'clock गिवन है, तो वी विल यूज सिंस प्रपोजिशन. सी द सेकेंड रूल,
since 1998, 2005, 2009. तो कोई भी फिक्स्ड ईयर हो आपको, इट कैन बी 2001, 2020, 2019, एनी टाइम पीरियड, एनी फिक्स्ड ईयर. अगर आपको फिक्स्ड ईयर गिवन है देन वी विल यूज सिंस. सपोज आपको गिवन हो 2 years, 3 years, तो वो आपका फिक्स नहीं है, वो आपका वहाँ आपका फोर प्रपोजिशन यूज होगी. क्लियर? सी नंबर 3, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे मीन्स विद द डेज नेम वी विल यूज सिंस, क्योंकि ये आपके फिक्स्ड है. तो फिक्स डे इज गिवन, वी विल यूज सिंस प्रपोजिशन. ठीक है, फॉर 2 days, 3 days, 5 days, 6 days, then we will not use since. In that case we will use for preposition. अगर फिक्स डे गिवन है, डेज नेम गिवन है आपको मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, then we will use since. See, when months name are given, then again we will use since preposition. Since January, since February, since March, since April, like this, since December. बट आपको फ्यू मंथ्स गिवन है, 2 months गिवन है, वहाँ हम सिंस यूज नहीं करेंगे. जब आपको फिक्स मंथ गिवन हो देन वी विल यूज सिंस. सी नंबर 4, सिंस मॉर्निंग फॉर द पार्ट्स ऑफ द डे. व्हेन पार्ट्स ऑफ द डे इज गिवन, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, देन वी विल यूज सिंस प्रपोजिशन. क्योंकि मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग का टाइम, आफ्टरनून का टाइम और नाइट का टाइम ये सब फिक्स होता है. तो सिंस हम फिक्स टाइम पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, और जहाँ हमारा टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता वहाँ हम फॉर यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट नंबर 5, सिंस येस्टरडे, सिंस डे बिफोर येस्टरडे. ऐसे ही सिंस टुडे, सिंस टुमारो, सिंस डे आफ्टर टुमारो. दीज आर द फिक्स टाइम पीरियड. येस्टरडे आपका फिक्स होता है, टुडे और टुमारो भी. सो वी विल यूज सिंस प्रपोजिशन विद देम. एंड नंबर 6, सिंस चाइल्डहुड एंड सिंस बर्थ. अब जो आपका चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है या जो बर्थ का टाइम पीरियड है वो फिक्स है, दैट्स वाई वी विल यूज सिंस. नाउ नंबर 7, सिंस दैट डे. हियर वी आर यूजिंग a particular day. When we talk about a particular day, that day, तो we will use since. But यहाँ पे अगर that day की जगह 2 days, 3 days आ जाए, then we will use for. Number 8, since my dad was born. It means जो dad का time period है born का वो fix है, we can't change. That's why we have used since preposition here. Since my day, my dad was born. सेम अगर आपको फिक्स डेट गिवन है, जैसे कि सिंस 17th जुलाई, तो वी विल यूज सिंस प्रपोजिशन फॉर द फिक्स टाइम पीरियड. दीज रूल्स यू हैव टू लर्न. नाउ सी एग्जाम्पल्स ऑफ सिंस. राम 4 बजे से घूम रहा है. यहाँ जो 4 o'clock टाइम है ये फिक्स है, तो राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4. मोस्टली जहाँ पे आपका हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म यूज होती है, वहाँ हमारा सिंस या फॉर प्रपोजिशन यूज होती है. दिस इज अ रूल. प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं सुबह से खेल रहा हूँ. अब नाउ जो मॉर्निंग टाइम है दैट इज फिक्स, तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. मैं मॉर्निंग से, सिंस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, से. मैं मॉर्निंग से खेल रहा हूँ. आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. नेक्स्ट, वो कल से यहाँ है. अब कल आपका फिक्स्ड है, मीन्स येस्टरडे. तो आई टोल्ड यू येस्टरडे, टुडे, टुमारो वी विल यूज सिंस. शी हैज बीन हियर सिंस येस्टरडे. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेहा दोपहर से रो रही है. आफ्टरनून का टाइम फिक्स है, तो नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून. नेक्स्ट, मैं तब से पढ़ रहा हूँ.
अब तब से, आई टोल्ड यू दैट डे, तब से कोई फिक्स टाइम है, कोई पर्टिकुलर टाइम है, तो वी विल यूज सिंस प्रपोजिशन. आई हैव बीन स्टडिंग सिंस देन. नेक्स्ट, मम्मी 5 बजे से घर पे है. मोम इज एट होम सिंस 5 o'clock. फिक्स टाइम है तो वी विल यूज सिंस प्रपोजिशन. नाउ लर्न यूज ऑफ फोर. फोर का मीनिंग भी क्या होता है? से. फोर और सिंस वी यूज इन द सेम मैनर. सिंस यूज होता है फिक्स टाइम के लिए और फोर यूज होता है नॉट फिक्स टाइम. जब आपका टाइम पीरियड फिक्स ना हो तो हम फोर यूज करते हैं. एज देखिए, फ्यू डेज, 10 मिनट्स. फ्यू डेज की जगह 5 days, 3 days, 9 days, कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. 10 minutes, 5 minutes, 4 minutes, when minutes are given you. ठीक है. नेक्स्ट, 3 hours. ऐसे कितने भी hours given हो, few hours, many hours, 3 hours, 2 hours. 4 hours we will use 4. 2 weeks, 3 weeks, 5 weeks, तो we will use 4. ऐसे ही 1 month, 5 seconds, few seconds, many seconds, 7 seconds, 8 seconds, whatever is given, 30 seconds. अगर सेकेंड्स है, मंथ्स है, वीक्स है, आवर्स है, मिनट्स हैं, या डेज या मंथ्स, फ्यू मंथ्स, 1 month या फिर ईयर्स जो कि फिक्स ना हो, वी विल यूज 4. नाउ सी एग्जाम्पल. ही हैज़ बीन मिसिंग फॉर 3 days. अब आपको डेज गिवन है तो वी विल यूज 4. अगर आपको मंडे, ट्यूसडे वगैरह गिवन होता तो देन वी विल यूज सिंस. Now next example, I have been learning English for 2 years. मैं 2 years से English सीख रहा हूँ. यहाँ पे आपको फिक्स्ड ईयर गिवन नहीं है कि 1999 से, 2010 से, तो we will use 4 preposition here. Now next, I have been calling you since 1 PM. 1 PM fixed time given है तो we will use since preposition here. Next, He has been missing since Monday. अब यहाँ पे आपको पर्टिकुलर डे गिवन है, मंडे, डेज नेम गिवन है. That's why we have used since preposition here. Now solve this quiz. I have been thinking about you dash morning. Morning है तो we will use since preposition here. Second, they have been playing cricket dash 2 hours. अब यहाँ पे आपको आवर्स गिवन है. आवर्स हो, मिनट्स हो, सेकंड हो, वी विल यूज 4 देन. नेक्स्ट है नंबर 3. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 5 minutes. अब आपको पर्टिकुलर टाइम गिवन नहीं है तो देन वी विल यूज 4. नेक्स्ट है दीपिका हैज बीन सिक डैश मंडे. पर्टिकुलर डे इज गिवन, वी विल यूज सिंस हियर देन. नाउ सी एक्सरसाइज. Fill in the blanks given below with the correct preposition in, on, at, to, for, into, between and behind. First है Sita is not here. She is in the school. वो कहाँ है? स्कूल में. B, is that your book? Dash the table. टेबल पर तो क्या हो जाएगा? On the table. C में है write it. इसे लिखें. Dash a piece of paper. पेपर पर तो on a piece of paper. नंबर डी, एलन ड्रॉप एट डैश द एयरपोर्ट. कोई प्लेस है तो विल यूज एट द एयरपोर्ट. नंबर ई, पुट इट डैश द लिस्ट. इसे लिस्ट पर रख दीजिए, ऑन द लिस्ट. नंबर एफ, द सन डिसअपियर्ड डैश द क्लाउड्स. तो वी विल पुट बिहाइंड द क्लाउड्स. नंबर जी, देयर इज अ टाउन डैश द वेस्ट कोस्ट. अब आपको एक कोस्ट गिवन है तो वी विल यूज हियर एट preposition. नंबर एच, इज इट इज द शॉप डैश द लेफ्ट. फॉर द राइट लेफ्ट वी यूज ऑन preposition. ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, तो वी विल राइट ऑन हियर एच. नंबर आई, दिस इज माई फर्स्ट विजिट टू ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑफ ऑस्ट्रेलिया. नंबर जे, आई मेट हर. मैं उसे मिला एट द हॉस्पिटल. नंबर के, my uncle works dash a farm and my aunt works dash the airport. तो फर्स्ट में देखिए my uncle works on a farm भी ठीक है और at a farm भी, and my aunt works at the airport.
Now next, number L, I leave dash 5 Shivaji Marg. This is our address, so we will put at here. M, I am leaving dash Delhi tomorrow. तो leaving for Delhi, Delhi के लिए. Number N, I heard the news dash the radio. तो on the radio, on the television, we use this word. O, I sat down dash Raj and Bhuvan. There are two persons, we will use between here. Number P, who is the boy standing dash Dev. देव के पीछे कौन खड़ा है, तो we can use behind here according to these preposition words. Number Q, the car is going dash a garage. अब गैरेज में जा रही है तो मूवमेंट हो रही है, किसी चीज के अंदर जा रही है, तो into a garage. Number R, the car has stopped dash the garage. अब यहाँ पे near भी हो सकता था, in front of भी, but among the options we will put behind the garage. Number S, Mary was born in Chandigarh. कैपिटल के लिए सॉरी सिटी के लिए we will use in preposition. Number T, Galen almost fell dash the river. अब fell होगा into the river क्योंकि इससे river में क्या होगी, movement. Number U, the boy is dash the sea now. तो क्या हो जाएगा, in the sea now. Number V, they are dash their way home. तो on their way home. Now see next, number W, the goat is dash the way of a car. इसमें क्या होगा, in the way of car, कार के रास्ते में. X, Sita has a bandage on her eye. eye के ऊपर bandage है. Y, he put the book dash the table. तो on the table. Number Z, I go dash school by bus. Here we will put to, go to school.